ناظرین سلام. آج کا لیکچر مادے کی مختلف حالتوں کے اوپر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عام طور پہ ہم سالڈس کو، لکوڈس کو اور گیسز کو علیحدہ علیحدہ اسٹیٹ سمجھتے ہیں مادے کی، لیکن یہ اگرچہ بہت حد تک درست ہے مگر مکمل طور پر نہیں ہے. مثال کے طور پر گلاس کو ہم سالڈ سمجھتے ہیں، لیکن گلاس بھی بہتا ہے جس طرح لکوڈز بہتے ہیں. تو جب کئی سال گزر جاتے ہیں تو ایک کھڑکی کا شیشہ جو ہے وہ نیچے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اوپر کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. یا گوندا ہوا آٹا لیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ سالڈ ہے کہ لکوڈ ہے؟ وہ اپنا شیپ کسی حد تک قائم رکھتا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں. بہرحال مادے کی جو مختلف اشکال ہیں ان میں زیادہ تر سالڈز، لکوڈز اور گیسز ہوتے ہیں، مگر دوسرے فارمز بھی ہیں اور میں ان کا بھی آج تذکرہ کروں گا. پلازماز اس کی ایک مثال ہے. پلازماز میں ایک ایٹمز اور مالیکیولز کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس میں اگرچہ فورسز ہیں لیکن وہ فورسز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو باندھ کر رکھیں. تو آج ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ سالڈز، لکوڈز اور گیسز ان کی کیا خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات، ان صفات کو ہم کیسے کیریکٹرائز کر سکتے ہیں، کیسے میجر کر سکتے ہیں. ایک سالڈ کی خصوصیت، صفت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتا ہے. مکمل طور پر اگر آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے اٹ از پرفیکٹلی الاسٹک، مکمل طور پر الاسٹک ہے. لیکن اگر یہ اسی حالت میں رہ جاتا ہے دباؤ ڈالنے کے بعد تو ہم یہ کہیں کہ اٹ از پرفیکٹلی پلاسٹک. اب فطرت میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن الاسٹک اور پلاسٹک یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ہر جسم جو ہے، ہر میٹل یا ہر سالڈ وہ اس رینج میں آتا ہے. تو اب چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مٹیریلز سب سے زیادہ الاسٹک اور سب سے زیادہ پلاسٹک ہوتے ہیں. اگر آپ کوارٹز یا اسٹیل یا گلاس لیں، یہ تقریباً الاسٹک ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جب آپ اس پر سے دباؤ ہٹا دیتے ہیں تو یہ اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ پلاسٹسین لیں تو پلاسٹسین کو جب آپ یوں دبا دیتے ہیں تو اسی حالت میں رہ جاتا ہے. اب ہم اس کو میتھمیٹکلی سمجھنا چاہیں گے. ہم جب دباؤ ڈالتے ہیں تو یہ سٹریس پیدا کرتا ہے. اس سٹریس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز فورس پر یونٹ ایریا. ظاہر ہے کہ آپ جتنا زیادہ سٹریس ڈالیں گے اسی حساب سے یہ زیادہ دبے گا، لیکن سٹریس کی ڈیفینیشن دیکھیے، اٹ از دی فورس پر یونٹ ایریا جو آپ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. سٹریس کے یونٹس ہیں نیوٹنز پر میٹر اسکوائرڈ. نیوٹنز آپ کو یاد ہے دس از فورس اور ایریا از میٹر انٹو میٹر، میٹر اسکوائرڈ. 3 مختلف قسم کے سٹریسز ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ ڈیفارمنگ فورس کسی ایک ڈائمینشن میں لگائیں، کسی ایک لکیر میں لگائیں تو پھر اس کو لینئر ڈیفارمنگ سٹریس کہتے ہیں، اور اس کو لانجیٹیوڈنل سٹریس یا ٹینسائل سٹریس یا کمپریسو سٹریس بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ جب اس طرف فورس لگائی جاتی ہے تو سٹریس بھی اسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے. آپ کسی جسم پر دباؤ ہر طرف سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو والیوم سٹریس کہتے ہیں. تو یہاں پر اگر فورس اس کیوب کے اوپر ہر سمت سے برابر لگائی جائے تو اس کے اوپر ایک والیوم سٹریس لگایا گیا ہوگا. مگر اس کے علاوہ سالڈز کے اوپر آپ ایک اور طرح کا سٹریس بھی لگا سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر یہ ایک باڈی ہے اور آپ اس کو یوں دبائیں اور فورس یوں لگائی جائے تو یہ پھر ٹینجنشنل یا شیئرنگ سٹریس کہلاتی ہے. اب اس کے نتیجے میں جو سٹرین پیدا ہوتا ہے، اور یہاں سٹرین سے مطلب یہ کہ جو رسپانس ہے وہ بھی 3 مختلف قسموں کا ہوتا ہے.
जब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी जिस्म के ऊपर लगाई जाती है तो स्ट्रेन यानी कि जो रिस्पॉन्स है उसी शक्ल का होता। स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं एज द चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसके कोई यूनिट्स नहीं है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी तार को यूं खींचते हैं तो इसमें जो लंबाई में फर्क आता है उसको आप ओरिजिनल लंबाई से जब डिवाइड करते हैं वह कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, इसको लीनियर स्ट्रेन कहा जाता है। लीनियर इस वास्ते कि इट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और यहां आप देखते हैं कि कोई डायमेंशंस नहीं है क्योंकि एल डिवाइडेड बाय एल है। इसी तरह हम वॉल्यूम स्ट्रेन डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम डेल्टा वी कहते हैं, टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वी। ये रेशियो वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाई वी। यहां भी कोई डायमेंशन नहीं होता। इसके अलावा shearing स्ट्रेन है। shearing स्ट्रेन इज द एंगुलर डेफॉर्मेशन, और इसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं। सो द shearing स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ डेल्टा एक्स टू एल, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू छोटी हो तो चूंकि tan थीटा sin थीटा ओवर कोसाइन थीटा है, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, कोसाइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो इस वास्ते tan थीटा और थीटा की वैल्यूज तकरीबन बराबर हैं, चुनाचे थीटा इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। इन जनरल स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में एक रिस्पॉन्स मिलता है। वो रिस्पॉन्स लीनियरली प्रोपोर्शनल अगर हो फोर्स के तो हम ये कहेंगे कि हुक्स लॉ इज बीइंग ओबेड। अब ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी तार को एक सिमत खींचते हैं तो उसकी लंबाई में इजाफा होता है। अगर ये लंबाई उस फोर्स के मुताबिक उसके प्रोपोर्शनल आगे बढ़ती है तो इसका जो रेशियो बनता है वो एक कांस्टेंट है और वो यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। यंग्स मॉड्यूलस को हम डिफाइन करते हैं एज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप लिखें और स्ट्रेन को डेल्टा एल बाय एल, तो इससे जो रेशियो बनता है दैट इज एफ ओवर ए इंटू डेल्टा एल बाय एल। इसी तरह हम बल्क मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस में आप एक जिस्म को हर तरफ से बराबर दबाते हैं, और अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर के ऊपर हर सिम से बराबर फोर्स लगाई जाएगी। चुनाचे इधर जो डेफिनेशन बनती है, बल्क मॉड्यूलस इज द वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम स्ट्रेन। फिर इससे जो डेफिनेशन आगे बनती है, बी इज माइनस द प्रेशर डिवाइडेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर क्यों? इस वास्ते कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये प्रेशर हर सिम से बराबर लगाया गया है। इसके आगे आपने देखा कि माइनस साइन भी लगा हुआ है। वो माइनस साइन इसलिए कि जब आप किसी शय को दबाते हैं तो उसमें वॉल्यूम कम हो जाता है। जाहिर है कि इसको हम एक कंप्रेसिबल मटेरियल कहेंगे, और बी कंप्रेसिबिलिटी भी कहलाता है। जिस मटेरियल में बी की वैल्यू ज्यादा हो तो हम ये कहेंगे कि वो ज्यादा कंप्रेसिबल है, और अगर बी जीरो हो तो हम कहेंगे कि ये इनकंप्रेसिबल है। जब हम shear स्ट्रेन लगाते हैं, जब हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाते हैं तो उससे फिर एक shear मॉड्यूलस डिफाइन होता है जिसको ईटा का नाम दिया गया है। ईटा इज डिफाइंड एज द shearing स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द shearing स्ट्रेन, और shearing मॉड्यूलस को हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन लगाएं, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन थीटा है। यहां थीटा और tan थीटा चूंकि बराबर हैं, इस वास्ते द shearing मॉड्यूलस इज F इंटू L डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स वो फासला है जिससे ये जिस्म आगे की तरफ जाता है, और याद रहे कि आपने ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया और इस वास्ते ये shearing मॉड्यूलस कहलाता है।
अभी तक तो मैंने 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स की बात की है। एक लीनियर मॉड्यूलस कहलाता है, दूसरा बल्क मॉड्यूलस और तीसरा shear मॉड्यूलस। तो लीनियर में हम एक सीध में खींचते हैं, बल्क में हम हर तरफ से बराबर दबाते हैं और shear में हम साइड से उसको फोर्स देते हैं। एक और कांस्टेंट है, एक और मॉड्यूलस है जिसका मैं अभी जिक्र करना चाहता हूं, और वो है पॉइसॉन्स रेशियो या पॉइसॉन्स कांस्टेंट। फर्ज कीजिए कि कोई तार या कोई रबर बैंड हो और उसको आप यूं खींचते हैं। हाँ, तो एक बात तो यह है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो इस सिम्प में होगी। अगर मैं इस सिम्प में खींचता हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस सिम्प में होगी। लेकिन जब मैं इसको खींचता हूं तो इसका रेडियस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इसलिए कि इसकी लंबाई बढ़ गई तो इसकी मोटाई जो है वो कम होती गई। जो रेशियो बनता है डेल्टा आर बाई आर, फर्ज कीजिए कि ये गोल है और डेल्टा आर इज द चेंज इन रेडियस ऑफ द वायर हो, रबर बैंड जो भी, तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस है। और इसको अगर हम डिवाइड करें बाय डेल्टा एल बाय एल, दैट इज टू से चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, तो फिर इससे एक और कोएफिशिएंट बनता है जिसको हम पॉइसॉन्स रेशियो कहते हैं। तो पॉइसॉन्स रेशियो यूं डिफाइन होता है, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, और इसकी कीमत जो है वो 0 और 0.5 के दरमियान होती है। जब हम किसी तार को खींचते हैं तो हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। कितना काम, ये डिपेंड करता है कि हम इसको कितना खींचते हैं। अगर फोर्स x के प्रोपोर्शनल हो तो F dx विल बी x इंटू dx, और जो काम के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो हमें ऐड करने होंगे फाइनल वर्क तक पहुंचने के वास्ते। तो ये देखिए कि W इज इक्वल टू द इंटीग्रल 0 टू द मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन को मैंने डेल्टा L कहा है, तो यहां पर हमें एक इंटीग्रेशन करनी है x dx की। अब आप ये जानते हैं कि x का इंटीग्रल हाफ x स्क्वायर्ड है, चुनाचे जब ऊपर और नीचे की लिमिट्स इसमें डाली जाती हैं तो द टोटल वर्क डन इज ya ओवर l इंटू डेल्टा l स्क्वायर्ड ओवर 2। ये y इसलिए आया था कि हमने फोर्स को y इंटू a डिवाइडेड बाय l इंटू x लिखा। अब हम चाहें तो हम इसको एक और शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये देखिए कि जो मैंने अभी वर्क के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसको एक और शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इस इक्वेशन में मैंने सबसे पहले वर्क को इस तरह से लिखा है कि डेल्टा एल 2 अलहदा फैक्टर्स में अब शामिल कर दिया गया है। चुनाचे वर्क डन के 3 अलग अलग फैक्टर्स बनते हैं। हाफ को अलहदा कर लीजिए इसे, सो इट इज हाफ इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करें, गोया कि अगर आप वर्क पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो दैट इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। शायद आप इसको एक और तरीके से भी लिखना चाहें, वो है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। अब यह है कि जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो हुक्स लॉ सिर्फ एक हद तक अप्लाई होता। तो यहां पर जब हम इसको यूं खींचते जाते हैं, ठीक है, इस वक्त फोर्स बढ़ रही है, लेकिन ये हुक्स लॉ अब नहीं ओबे कर रही। अब ये चूंकि इतना ज्यादा स्ट्रेच हुआ तो अब ये हुक्स लॉ के रीजन से बाहर निकल गया, और अब देखें कि इसको यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, और अब तो ये रबर बैंड है ही नहीं, लिहाजा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहां पर हुक्स लॉ अप्लाई हो। एक हद के बाद ये मटेरियल टूट जाता है, इसको रप्चर कहते हैं। सो वंस द मटेरियल इज रप्चर्ड देन ऑफ कोर्स हुक्स लॉ डज नॉट अप्लाई। उससे पहले भी अप्लाई नहीं करता, सिर्फ उस सूरत में अप्लाई करता जब आप इसको बहुत कम एक्सटेंड करते हैं। अब इसी तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस और
वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज F/A और वो प्रेशर के बराबर है. और इसी तरह से स्ट्रेन इज डेल्टा V डिवाइडेड बाई V. तो बल्क मॉड्यूलस बना डेल्टा P डिवाइडेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम ओवर द ओरिजिनल वॉल्यूम. सो इट इज डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V. अब ये क्यों होता है कि कुछ सॉलिड्स बहुत सख्त होते हैं, उनको खींचना मुश्किल होता है, दूसरे सॉलिड्स आसानी से खींच जाते हैं? इसका ताल्लुक असल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ है. इस वास्ते के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है वो ये तय करती है कि इसको खींचना आसान होगा या मुश्किल. अब ये फोर्स कहां से मुतय्यन होती? एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे तक जाते हैं और वापस आते हैं और उनमें एक बॉन्डिंग पैदा करते हैं. तो ये मॉलिक्यूल हो या एटम हो, इनके दरमियान जो फोर्स है वो बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होती है. अब मुख्तलिफ एटम्स में मुख्तलिफ फोर्सेस इसलिए होती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की और है, और ये कि ये मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में है. ये मालूम करना कि अगर फोर्स इतनी हो तो उससे फिर मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये कोई आसान सवाल नहीं है, लेकिन फिजिक्स के शोबे में इस तरह के सवालात हल किए गए हैं किसी हद तक. अभी तक तो मैंने सिर्फ सॉलिड्स की बात की है. सॉलिड्स के ये 3 बेसिक मॉड्यूलाई होते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलाई होते हैं और फिर पॉइसॉन्स रेशियो भी होता है. लेकिन अगर आप फ्लूइड्स लें, लिक्विड्स लें, तो लिक्विड्स के लिए सिर्फ एक मॉड्यूलस होता है और वो है बल्क मॉड्यूलस. इस वास्ते कि आप किसी लिक्विड को एक सिमत में यूं खींच नहीं सकते, ना ही आप उसके ऊपर कोई shear स्ट्रेस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूं लगाएंगे तो लिक्विड उसके साथ चलने लगेगा. लिहाजा अब मुझे एक नए टॉपिक की तरफ आना है और वो है फ्लूइड्स और फ्लूइड्स एट रेस्ट. बाद में हम बहते हुए फ्लूइड्स की भी बात करेंगे. फ्लूइड्स को जब आप किसी बर्तन में डालते हैं तो वो उस बर्तन की शक्ल ले लेते हैं. आप अगर वो शेप बदलें तो फ्लूइड भी अपना शेप बदलता है. फ्लूइड्स का एक मॉड्यूलस होता है एंड दैट इज द बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस मतलब ये कि अगर आप उसको हर तरफ से बराबर दबाएं तो फिर वो फ्लूइड कंप्रेस होगा. जब हम किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर हर तरफ बराबर फैलता है. इस वास्ते प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है. प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं एज द अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया अपॉन विच इट इज अप्लाइड. तो ये F/A के बराबर है. अगर हम वही फोर्स मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर अप्लाई करें तो देखें इसका क्या असर होता. यहां पर वही फोर्स मुख्तलिफ एरियाज पर अप्लाई किया गया लेकिन उनका असर मुख्तलिफ है. प्रेशर के डायमेंशंस फोर्स ओवर एरिया के हैं और फोर्स आपको याद है दैट इज mL(T⁻²) और एरिया के डायमेंशंस L² हैं. लिहाजा प्रेशर के डायमेंशंस बनते हैं mL⁻⁻1 T⁻². और इसके यूनिट्स न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर्ड के बराबर हैं और इसको पास्कल भी कहा जाता है. ये ब्लेज पास्कल के नाम पर है जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था आज से कोई 400 साल पहले. प्रेशर मुख्तलिफ सिचुएशंस में देखिए क्या होता. अगर आप बिल्कुल जमीन के बीच तक पहुंचे, उसके मरकज तक पहुंचे, तो सारी जमीन का प्रेशर आपके ऊपर होगा और वो है अबाउट 4 × 10⁻11 पास्कल्स. अगर आप जेरे समंदर हों तो उधर तकरीबन 10⁸ पास्कल्स है. एक गाड़ी के टायर में 2 × 10⁵ पास्कल्स है और ये एक एटमॉस्फेयर से तकरीबन डबल है. एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस हवा का वजन है जो जमीन के ऊपर है और जिसका दबाव हम पे लग रहा है. उसकी वैल्यू है 10⁵ पास्कल्स.
तो गाड़ी के टायर में आप उससे डबल प्रेशर डालते हैं, so it's about 2 times 10 to the power 5 पास्कल्स या 2 एटमॉस्फेयर्स। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करें तो ब्लड प्रेशर इज अबाउट 1.6 times 10 to the power 4 पास्कल्स। लेबोरेटरी में हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर वैक्यूम तैयार किया जाए, लेकिन ये कभी मुकम्मल तौर पर जीरो नहीं हो सकता, इस वास्ते कि कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो रह जाते हैं। जो मिनिमम लेबोरेटरी वैक्यूम पैदा किया जा सका है आज तक, दैट इज अबाउट 10 to the power -12 पास्कल्स। अब ये था प्रेशर। अगर हम डेंसिटी डिफाइन करें तो डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी भी बगैर किसी डायरेक्शन के होता, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। और अगर ये डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो उसका मतलब ये कि आप एक बड़ा वॉल्यूम लेकर उसका मास मेजर कर सकते हैं और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द डेंसिटी। अगर डेंसिटी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है तो फिर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर डेंसिटी मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा भी हो। पानी की डेंसिटी अबाउट 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब्ड है। इसका मतलब ये कि अगर आप 1 मिलीलीटर लें या 1 सीसी लें तो उसका वजन 1 ग्राम होगा, और खून का भी तकरीबन उतना होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि मुख्तलिफ फ्लूइड्स की डेंसिटीज कितनी होती है। एक तरफ तो गैसेस हैं, मसलन हाइड्रोजन या हीलियम या ऑक्सीजन, तो उसकी जो टिपिकल डेंसिटी है दैट इज अबाउट 10 to the -1 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। हवा की डेंसिटी अबाउट 2 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब्ड है, और अगर आप तेल देखें या पानी देखें तो इनमें तकरीबन एक जैसी वैल्यू मिलती है, अबाउट 10 to the power 3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। बेशतर लिक्विड्स की कसाफत यानी डेंसिटी पानी के लगभग ही होती है। मिसाल के तौर पर तेल पानी से थोड़ा सा कम कसीफ है, कम डेंस है, लेकिन खून उससे थोड़ा ज्यादा है। एक लिक्विड है जो इन सब से बहुत मुख्तलिफ है और वो है पारा, मर्क्यूरी। मेरे पास थोड़ी सी मर्क्यूरी है, ये मैं आपको दिखाता हूं। अब मर्क्यूरी असल में मेटल है, मगर ये एक बड़ा अजीबो गरीब धात है, क्योंकि इसमें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिक्विड के हैं। मतलब ये कि देखें कि इस मर्क्यूरी ने अब वही शक्ल इख्तियार की यहाँ जो मेरे हाथ की है। जैसे जैसे मैं हाथ को यहाँ इसकी फॉर्म बदलता जाता हूँ, शेप बदलता जाता हूँ, तो मर्क्यूरी भी इसके साथ साथ मूव करती जाती है और इसकी शेप भी बदलती है। अब मैं एक बहुत अहम फॉर्मूला डिराइव करूंगा, जो फॉर्मूला इक्वेशन फॉर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर आप पानी लें या कोई सा भी फ्लूइड लें और इसमें किसी एक एलिमेंट को देखें, कोई छोटा जर्रा फर्ज कीजिए कि वहां पर है या कोई छोटा वॉल्यूम है, तो वो एट रेस्ट है, इन इक्विलिब्रियम है। और जब कोई मास इन इक्विलिब्रियम होता तो उसका मतलब ये कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती, लेकिन मुख्तलिफ फोर्सेस तो इसके ऊपर अमल कर रही हैं। एक तो ग्रेविटी की है, ग्रेविटी उस जर्रे को या उस वॉल्यूम को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर प्रेशर है, और वो प्रेशर हर जगह बराबर नहीं है। देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अपना वजन नीचे की तरफ तो डाल रहा है, चुनाचे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर प्रेशर निस्बतन कम होगा और नीचे उससे ज्यादा होगा। अब मैं इसकी मैथमेटिक्स कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि एक मास m के ऊपर जो फोर्स अमल करती है, यानी कि जो उसका वेट है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू g। तो ये डाउनवर्ड फोर्स है। लिहाजा इधर जो मैंने छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया है dm, उसका मास है रो मल्टीप्लाइड बाय dv, वेयर रो इज द डेंसिटी, और dv
इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई. डी वाई उस टुकड़े की मोटाई है और ये टुकड़ा जो है वाई हाइट के ऊपर मौजूद है. लिहाजा यहां जो वेट बनता है दैट इज डी एम इंटू जी, सो दैट इज रो जी ए इंटू डी वाई. ये टुकड़ा जितना ज्यादा मोटा होगा यानी कि डी वाई जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से वेट भी ज्यादा होगा. प्रेशर हर तरफ बराबर एक्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर तब्दील होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर जाने से प्रेशर कम हो जाता है. लेकिन चलिए y के हिसाब से अगर आप देखें तो ऊपर P प्लस डी पी है और फोर्स जो इस एलिमेंट के ऊपर अमल करती है दैट इज P प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाई A, जबकि नीचे की तरफ प्रेशर की वैल्यू है P इंटू A. अब यहां फोर्सेस को बैलेंस करने की जरूरत है. तो ये देखिए, ऊपर की तरफ फोर्स है P इंटू A, जबकि नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी की और दूसरी प्रेशर की, और इनका जो टोटल सम है उसको जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के वास्ते. यहां पर dp बाई dy इक्वल्स माइनस रो इंटू जी बनता. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. हाइड्रोस्टैटिक क्यों? इस वास्ते कि ये फ्लूइड एट रेस्ट है, और हाइड्रो का मतलब तो आप जानते हैं फ्लूइड या वाटर. अब ये देखें कि dp बाई dy इज इक्वल टू माइनस रो जी, और अगर रो कांस्टेंट हो और g तो कांस्टेंट है ही, या कम से कम आप ये समझें कि इट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, तो फिर dp बाई dy एक कांस्टेंट बनता है. जिसका मतलब ये कि अगर आप इसको सॉल्व करें, dp बाई dy इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो p इज प्रोपोर्शनल टू y. मतलब ये कि प्रेशर वेरीज लीनियरली अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस. अच्छा, अगर हम ये मान लें तो फिर यहां से अगर हम प्रेशर एक पॉइंट पे उसको y1 कहें और फिर दूसरे पॉइंट पे उसको y2 कहें, तो प्रेशर इधर P1 है और इधर P2 है. एक रिलेशन फौरी तौर पे सामने आ जाता है, विच इज दैट द डिफरेंस इन प्रेशर्स P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो जी इंटू y2 माइनस y1. ये एक ऐसे लिक्विड के लिए है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो, गोया के दिस इज फॉर अ होमोजीनियस लिक्विड. अगर किसी लिक्विड का फ्री सरफेस हो, मतलब ये कि अगर हम उसको सतह से मेजर करें, अगर डिस्टेंसेस को हम उस सतह से मेजर करें, तो फिर ये एक नेचुरल रेफरेंस पॉइंट बनता है, एक ओरिजिन बनता है जहां से हम डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं. तो y इक्वल 0 को ओरिजिन मानते हुए मैं फासला इसकी सतह से नापूंगा और y नीचे की तरफ बढ़ रहा है. अब अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें dp बाई dy इज इक्वल टू माइनस रो जी, तो फिर उसका सोल्यूशन बनता है p इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इंटू द डिस्टेंस बिलो. तो प्रेशर नीचे ज्यादा होगा ऊपर की निस्बत. ऊपर कितना प्रेशर है? वेल, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का दबाव है, और वो हवा का दबाव जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, दैट इज अबाउट 10 टू द पावर 5 पास्कल्स या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नीचे जितना प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर प्लस इसका जो वजन बनता है, जो वेट बनता है, इन दोनों का जमा हो. अब अगर आप इस इक्वेशन को लें, P is equal to P naught plus rho g h, where h is the height below the surface, तो इससे फिर एक नतीजा ये निकलता है कि बर्तन का जो भी शेप हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इस तरह का शेप हो या उस तरह का हो या कैसे भी हो. अगर आप एक इस तरह का बर्तन लें तो इसमें प्रेशर सिर्फ y के ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब ये कि द डेप्थ बिलो द सरफेस. और इस वास्ते आप ये देखते हैं कि जब आप पानी किसी बर्तन में डालते हैं और उस बर्तन के साथ कोई दूसरा जुड़ा हुआ होता है किसी पाइप से, तो यहाँ हर जगह प्रेशर बराबर होता. अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं एक सवाल हल करना चाहता हूँ. एक ग्लास है, गोल है, उसमें मैं पानी भरता हूँ और उसके नीचे प्रेशर बढ़ता है इस वास्ते कि ऊपर पानी है. अब सवाल ये है
کہ نیچے جتنی فورس ہے وہ کب اس فورس کے برابر ہوگی جو اس کے والز کے اوپر لگائی جا رہی ہے پانی کی موجودگی کی وجہ سے. تو سوال یہ ہے, ٹو واٹ ہائٹ شوڈ اے سلینڈریکل ویسل بی فلڈ with a homogeneous liquid to make the force with which the liquid presses on the sides of the wall equal to the force exerted by the liquid on the bottom of the vessel. اب یہاں پر سب سے پہلے ہمیں یہ حساب لگانا ہے کہ نیچے فورس کی مقدار کتنی ہوگی. پریشر ہم نے معلوم کیا ہے, the pressure is rho into G into H, اور اس کو ایریا کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, اور ایریا پائی آر اسکوائرڈ کے برابر ہے. لہذا جو ٹوٹل فورس بنی نیچے کی طرف, دیٹ از ایچ رو انٹو جی ملٹیپلائڈ بائی پائی آر اسکوائرڈ. اب جو اس کی سائڈس کے اوپر فورس لگ رہی ہے وہ اوپر کم ہے نیچے زیادہ ہے, لیکن جو ایوریج فورس ہے دیٹ از رو جی ایچ ملٹیپلائڈ بائی ہاف. تو جتنا اوپر ہے اور جتنا نیچے ہے اس کا اگر آپ ایوریج لیں تو دیٹ از ہاف آف رو جی ایچ. اس کو ایریا سے ملٹیپلائی کرنا ہے. ایریا از 2 پائی آر ایچ. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ جو دائرہ ہے دیٹ از آر, اور جو سرکمفرنس بنتی ہے دیٹ از 2 پائی آر, اس کو آپ ہائٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو دیٹ از 2 پائی آر ایچ. لہذا جو ٹوٹل فورس بنی دیٹ از ہاف رو جی ایچ انٹو 2 پائی آر ایچ. اب ان دو فورسز کو آپ برابر کر دیں. دونوں فورسز کو برابر کرنے سے ہاف ایچ جی انٹو رو ملٹیپلائڈ بائی 2 پائی آر ایچ از اکول ٹو ایچ جی رو انٹو پائی آر اسکوائرڈ, اور ادھر سے ایچ کی ویلیو آر کے برابر نکلتی ہے. گویا کہ آپ کو اس ہائٹ پر بھرنا ہوگا جو اس کی ریڈیس کے برابر ہے. تو جب یہ کنڈیشن پوری ہو جائے گی تو فورس آن دا سائڈز ول بی اکول ٹو دا فورس بلو. اب اکویژن آف ہائیڈروسٹیٹک ایکویلیبریم استعمال کرتے ہوئے میں پاسکالز پرنسپل ڈیرائیو کروں گا. یہ ایک بہت سادہ پرنسپل ہے, اس کے پیچھے P از اکول ٹو پی ناٹ پلس رو جی ایچ ہی ہے. تو یہ دیکھیے کہ جب آپ فلوئڈ کے اوپر پریشر لگاتے ہیں تو یہ پریشر ہر جگہ برابر اثر انداز ہوتا ہے. جب ہم کسی فلوئڈ کے اوپر پریشر لگاتے ہیں تو اس فلوئڈ کے نیچے پریشر کی مقدار ہے ایکسٹرنل پریشر, یعنی کہ وہ پریشر جو ہم نے لگایا ہے, پلس رو جی ایچ. رو ڈینسٹی ہے, جی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی, اور ایچ وہ ہائٹ جو ہم میجر کرتے ہیں بلو دا سرفیس. اب اگر ہم پریشر بڑھائیں یا گھٹائیں سطح کے اوپر تو نیچے کیا پریشر ہوگا؟ اب چونکہ رو اور جی یہ دونوں کانسٹنٹس ہیں اور ہم ایک فکس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں تو ایچ بھی کانسٹنٹ ہے, اس واسطے جو پریشر اوپر ہے سو نیچے ہوگا. مطلب یہ کہ جو چینج ان پریشر اوپر ہے وہی چینج ان پریشر نیچے ہوگا. اس کا مطلب یہ بنتا کہ اگر آپ ایک لکوڈ کے کسی بھی حصے پر پریشر لگائیں تو دوسرے حصے پر وہی پریشر پڑے گا. اب یہاں ایک اسمپشن یہ ہے کہ اس لکوڈ کو آپ کمپریس نہیں کر سکتے. اٹ از این انکمپریسبل فلوئڈ. اگرچہ ایسا مکمل طور پہ کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن پانی یا تیل یا کوئی سا بھی اس طرح کا لکوڈ آپ لیں تو وہاں کمپریسبلٹی بہت کم ہوتی ہے. پاسکالز پرنسپل گیسز پر بھی اپلائی کرتا ہے, لیکن وہاں کمپریسبلٹی تو خیر زیرو نہیں ہوتی, بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر بھی یہ پرنسپل وہاں بھی اپلائی ہوتا ہے. گویا کہ the change in pressure at any point in the fluid is equal to the change in external pressure. اب میں ان پرنسپلس کو اپلائی کرنا چاہوں گا. ایک مثال ہائیڈرولک لیور کی ہے. ہائیڈرولک لیور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی فورس یہاں پر اپلائی کریں تو دوسری جگہ بہت بڑی فورس اپلائی ہوتی ہے, اور اس سے مثال کے طور پر آپ بہت بھاری وزن اٹھا سکتے ہیں. ایک طرف اگر آپ کسی پسٹن سے دبائیں تو دوسری طرف ایک بھاری گاڑی اوپر اٹھ سکتی ہے. اس کے پرنسپل کو ہم
समझना चाहेंगे पास्कल्स प्रिंसिपल की मदद से। इस तस्वीर में आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर एक फोर्स Fi अप्लाई की जा रही है एरिया AI के ऊपर। तो यहां पर प्रेशर बनता है Fi डिवाइडेड बाय AI, तो इसको हम इनपुट प्रेशर कहेंगे। अब जो दूसरी तरफ है वहां पर प्रेशर, उसको हम आउटपुट प्रेशर कहेंगे। ये आउटपुट प्रेशर F0 डिवाइडेड बाय A0 है, और पास्कल्स प्रिंसिपल के मुताबिक इन दोनों को बराबर होना चाहिए, इस वास्ते के प्रेशर एक लिक्विड के अंदर हर तरफ बराबर पहुंचता है। लिहाजा P इनपुट और P आउटपुट बराबर हैं। इससे यह मालूम होता है कि Fi बाय AI इज इक्वल टू F0 बाय A0। इधर से Fi इज इक्वल टू mg इंटू AI बाय A0। तो इधर दो एरियाज का रेशियो आता है। यहां पर हमने एक कम एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई की, वो फोर्स फिर एक प्रेशर बनाती है विच इज F डिवाइडेड बाय A, और वही प्रेशर दूसरी जगह पहुंचा। लेकिन अब यह है कि जब हम इसको यहां से दबाते हैं तो उस तरफ फोर्स ज्यादा होगी, प्रेशर वही होगा मगर फोर्स ज्यादा होगी, इसलिए कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। चुनाचे यहां पर आप कम फोर्स लगाकर एक भारी चीज को ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन फिर इधर सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहां पर आपने कोई एनर्जी कंजर्वेशन की वायलेशन की है, उसकी खिलाफ वर्जी की है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस वास्ते कि आप यहां ज्यादा फासला मूव करते हैं। मतलब ये कि जिस पिस्टन पे आपने जोर लगाया है, फोर्स लगाई है, तो उसको आपको ज्यादा फासले से मूव करना पड़ा, जबकि जो भारी चीज है वो कम फासले से ऊपर उठी। तो जितना काम आप यहां करते हैं उतना काम वहां होता है। गाड़ी का ब्रेक भी इसी उसूल के तहत काम करता है। जब आप ब्रेक के ऊपर दबाव डालते हैं तो ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है ब्रेक सिलेंडर तक, और ये फिर उस डिस्क के साथ जाके लगता है जो गाड़ी के पहिए के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका जो ब्रेक व्हील है। इसको हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहते हैं। प्रेशर इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम बहुत सी ऐसी बातें समझ सकते हैं जो बज़ाहिर तो बहुत अजीब और गरीब हैं। मिसाल के तौर पर ये एक भरी हुई बोतल है, पानी की भरी हुई बोतल है, इसको मैं इस ग्लास में ऊन डालूंगा मगर इसमें से पानी बहेगा नहीं। ये देखें, तो पानी रुक गया। यहां ये भरा हुआ है, ये ग्लास मुकम्मल तौर पे भरा हुआ नहीं है, लेकिन पानी बह नहीं रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब मैंने इस बोतल को यूं किया तो ऊपर खला पैदा हुआ। मतलब यह कि इधर कोई प्रेशर नहीं है, यहां पर जीरो प्रेशर है। चुनाचे जब मैं इसको यहां पर डालता हूं तो इक्विलिब्रियम की सूरत इसलिए पैदा होती है कि जब पानी नीचे जाने की कोशिश करता तो यहां पर वैक्यूम उसको रोक देता। अब इसकी मैं थोड़ी सी तफसील समझाना चाहूंगा। अगर आप कोई सा भी यहां पर पॉइंट लें तो वो पॉइंट, पानी का कोई हिस्सा लें तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में इसलिए है कि जो टोटल फोर्स उसके ऊपर अमल करती है वो बैलेंस हो जाती है। बैलेंस इसलिए कि हाँ, यहां पर जो वेट ऑफ वाटर है उसको बैलेंस किया जा रहा है विथ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फर्क यह है इस पानी की सतह में और इस सतह में कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जबकि यहां पर जीरो प्रेशर है या तकरीबन जीरो प्रेशर है। इस वास्ते ये पानी का कॉलम ऊपर रहेगा। किस हाइट तक रह सकता? अगर मैं एक 20 फुट की बोतल लूं, खैर इतनी बड़ी बोतल नहीं लेकिन कोई इतना कॉलम लूं 20 फुट ऊंचा, फिर जाहिर है कि ये पानी नहीं ठहर सकेगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा से ज्यादा
میرا خیال ہے کوئی 13 یا 14 فٹ تک کا ہے. اگر مرکیوری ہم لیتے ہیں تو مرکیوری کا کالم کوئی 7.6 سینٹی میٹرز کے برابر بنتا ہے، اور یہ ایک مرکیوری بیرومیٹر بنتا ہے. اس تصویر میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکیوری کالم کے اوپر پریشر P2 ہے اور یہ تقریباً 0 ہے. دس از اباؤٹ سیم ایز دا مرکیوری ویپر پریشر، اور ویپر پریشر بہت کم ہوتا. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر ویکیوم ہے. جو ایٹماسفیرک پریشر ہے اس کو یہاں P کہا گیا ہے، اینڈ دیٹ از دی ان نون پریشر. تو اب ایکویژن آف ہائیڈروسٹیٹک ایکویلیبریم اپلائی کیا جائے گا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ P2 مائنس P1 اس ایکویژن کے تحت مائنس رو جی انٹو Y2 مائنس Y1 کے برابر ہے. چنانچہ ادھر سے P کی ویلیو نکلتی ہے رو انٹو جی انٹو ایچ. ہائٹ میجر کر کے پریشر کی ویلیو پتا کی جاتی ہے. مرکیوری بیرومیٹر صرف ایک قسم کا بیرومیٹر ہے. آپ اس کے علاوہ اس سے زیادہ سینسیٹیو اور چھوٹے بیرومیٹرز استعمال کر سکتے ہیں ایئر پریشر معلوم کرنے کے لیے، اور یہ تو آج کل بہت ضروری ہے کیونکہ موسم کی پیشن گوئی کرنے کے واسطے آپ کو ایئر پریشر جگہ جگہ معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی جسم کو پانی میں رکھا جاتا ہے تو اس کا وزن کچھ کم ہو جاتا ہے، اور بعض کا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ تیرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہم اسی ایکویژن آف ہائیڈروسٹیٹک ایکویلیبریم سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات سب سے پہلے ارشمیدس نے سمجھی تھی آج سے 2000 سال پہلے، اور اس واسطے اس کو ارشمیدس کا اصول کہا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ اگر پریشر کا حساب لگائیں تو کچھ پریشر ایک جسم کے اوپریلے حصے پہ ہوتا ہے اور کچھ نچلے حصے پر. جو اوپر کا پریشر ہے وہ نیچے سے کم ہوتا ہے. سو دی فورس بلو ڈیوائڈیڈ بائی اے از گریٹر دین دا فورس ابو ڈیوائڈیڈ بائی اے. جو فورسز میں فرق ہے اس کو بوئنسی فورس کہا جاتا ہے، اور یہ بوئنسی فورس اگر کافی ہو تو وہ جسم پھر تیرتا ہے. اگر یہ ناکافی ہو، اس جسم کے وزن سے mg سے کم ہو، تو وہ جسم پھر تیر نہیں سکتا، وہ ڈوب جاتا. اس کی ہم کچھ تفصیل سمجھنا چاہیں گے. سب سے پہلے میں ارشمیدس کا اصول یہاں بیان کرتا ہوں. A body which is wholly or partially immersed in a fluid is buoyed up by a force or upthrust equal in magnitude to the weight of the fluid displaced by the body. مطلب یہ کہ اگر ایک جسم کو آپ پانی میں ڈالیں یا کسی دوسرے لکوڈ میں ڈالیں تو اس سے جتنا ماس فلوئڈ کا ڈسپلیس ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے، جو فورس اس کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے دیٹ از اکول ٹو دا ماس آف دا ڈسپلیس فلوئڈ. چنانچہ ایک جسم کا وزن کم معلوم ہوتا ہے بنسبت اس ویلیو کے جو آپ الگ کر کے میجر کرتے ہیں، ان ایئر میجر کرتے ہیں. تو اب فرض کیجئے کہ ایک جسم جس کا والیوم V ہے اور جس کی کثافت رو ہے کسی لیکوڈ میں ڈالا جاتا ہے جس کی ڈینسٹی رو پرائم ہے، تو پھر اس جسم کا وزن W ہوگا which is equal to رو انٹو جی انٹو V. V یاد رہے کہ اس کا والیوم ہے. جتنا لکوڈ اس کے نتیجے میں ڈسپلیس ہوتا ہے اس کا وزن W پرائم ہے، اینڈ دیٹ از اکول ٹو رو پرائم انٹو جی انٹو V. چنانچہ جو نیٹ ڈاؤنورڈ فورس ہے وہ دونوں کے ڈینسٹیز کے ڈفرنس کے پروپورشنل ہوگا. W از اکول ٹو رو پرائم مائنس رو انٹو جی انٹو V. اور اگر آپ رو کو باہر نکال لیں تو یہ ہو جاتا ہے رو جی V انٹو 1 مائنس رو پرائم اوور رو. رو پرائم ایکولز رو کرنے سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز نہ تو اوپر جائے گی نہ نیچے جائے گی. اٹ ول بی این ایکولیبریم. تو اگر آپ پانی کی کثافت کا کوئی دوسرا لکوڈ پانی میں ڈالیں تو وہ نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا، وہ وہیں پر ٹھہرے گا. ہاں اگر آپ نے اس کو کسی ویلوسٹی کے ساتھ ڈالا تو وہ پھر نیچے جاتا جائے گا اور دونوں لکوڈز پھر
मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इस उसूल की कुछ एप्लीकेशंस दिखाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डालते हैं, तो सवाल ये है कि बर्फ़ का कितना हिस्सा पानी की सतह से ऊपर होगा और कितना नीचे होगा। जाहिर है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये रेशियो कितना बनता है। तो बर्फ़ के टुकड़े का वज़न है रो इंटू वी इंटू जी, और यहां मैंने रो आई लिखा है, आई फॉर आइस। जो फोर्स ऊपर की तरफ है वो डिस्प्लेस्ड वाटर की है, और यहां पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उसको रो डब्ल्यू लिखा गया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वी डब्ल्यू, और जी तो दोनों में मुश्तरक है। अब चूंकि ये फोर्सेस बराबर हैं, इस वास्ते वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू दी अपवर्ड फोर्स। इन दोनों को बराबर करने से रिजल्ट ये निकलता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द आइस इज इक्वल टू रो आई ओवर रो डब्ल्यू। तो चलिए ये सवाल काफी आसानी से हल हो गया। इससे हमें यह मालूम होता है कि बर्फ तो पानी से हल्की है और इस वास्ते तैरती है, लेकिन अगर आप कोई जहाज देखें, समंदरी जहाज, तो वो तो लोहे का बना हुआ है, और लोहा जो है वो तो पानी से कहीं ज्यादा कसीफ है। तो फिर ये कैसे होता? वो इसलिए कि जहाज का शेप यूं रखा जाता है कि उसकी एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। गोया कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जहाज की डिस्प्लेसमेंट, वो इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस होता है कि जो अपवर्ड फोर्स है वो उसके वेट के बराबर हो जाता है। चुनाचे जहाज समंदर की सतह के ऊपर तैरते हैं बिकॉज ऑफ देयर शेप। हाँ, अगर वो शेप बदल जाए हादसाती तौर पर, तो फिर तो वो जहाज गर्क हो जाता है। आज के लेक्चर में हमने मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर गौर किया। मैकेनिकल से मतलब ये कि अगर आप कोई सॉलिड लें, उसको आप खींच सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसके ऊपर एक ऐसी फोर्स लगा सकते हैं जिसको शियर फोर्स कहते हैं, ये सॉलिड्स के लिए। फिर मैंने लिक्विड्स की बात की। अब लिक्विड्स में और सॉलिड्स में फर्क यह है कि लिक्विड अपना शेप बदल सकता है, जबकि सॉलिड उसी शेप में रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में फर्क क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज यहां से तय होती हैं कि इनमें जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस की नौयत क्या है। एक सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान हैं वो खासी स्ट्रांग हैं, और इस वास्ते एक एटम या एक मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर आप जबरदस्ती उसको निकालें तो बहुत से दूसरे एटम्स डिस्टर्ब होते हैं और अपनी जगह से हट जाते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर ये फोर्सेस निस्बतन कमजोर हैं, तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डिटरमिन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एक लिक्विड के अंदर ये फोर्स कम होने की वजह से आप इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां पहुंचा सकते हैं और बाकी मॉलिक्यूल्स उसकी जगह फिर ले लेंगे। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इन सब की प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर फोर्सेस से तय होती है। गैसेस का मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में तफसील से करूंगा। गैसेस में ये फोर्सेस और ज्यादा कमजोर होती हैं। आखिर में मुझे ये कहना है कि इस लेक्चर में मैंने सिर्फ स्टैटिक्स की बात की है, इक्विलिब्रियम, मगर हमें अब फ्लो की बात करना होगी, क्योंकि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज मुंसलिक हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ये सब फिर अगले लेक्चर में होगा। अब इजाजत, खुदा हाफ़िज़।